کے 4 بڑے اسپتالوں میں مرگی کی میڈیسن نایاب ہو گئی ہے۔ آؤٹ ڈور میں آنے والے مرگی کے مریض مایوس گھروں کو لوٹنے لگے۔ سر گنگا رام اسپتال، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں دوائی نایاب ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ جناح اور جنرل اسپتال میں بھی مرگی سے کوسوں دور ہے۔ سر گنگا رام اسپتال کے ایم ایس نے کہا کہ مرگی کی دوا کچھ ہی روز پہلے ختم ہوئی ہے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق مریضوں کی جانب سے ایسی کوئی شکایت محکمہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل جی، لاہور کے 4 بڑے ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ مرگی کی میڈیسن جو ہے وہ نایاب ہو گئی ہے۔ جان بچانے والی اس مرگی کی دوائی کا نایاب ہونا جو ہے وہ ایک حیرت انگیز امر ہے۔ آؤٹ ڈور میں آنے والے مرگی کے مریض جو ہے وہ مایوس جو ہیں وہ گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ لاہور کے جناح اور جنرل ہاسپٹل میں جو ہے وہ مرگی کی دوا جو ہے وہ مریضوں سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب صوبائی دارالحکومت کے سر گنگا رام اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز پنز میں بھی مرگی کی دوا جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے۔ دماغ کے فزیشنز ہونے کے باوجود جو ہے وہ مرگی کی دوائی نایاب ہے۔ خاص طور پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز جو کہ صرف دماغ کے مریضوں کا علاج کرتا ہے، اس کے آؤٹ ڈور کے اندر مرگی کی دوا نایاب ہونا جو ہے وہ قابل افسوس سمجھا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے لاہور کے 4 ہسپتال میں مرگی کی دوائی ختم ہونے پر مریضوں میں جو ہے وہ مرض بھی بڑھ رہا ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ترجمان سید حماد رضا کا موقف ہے کہ مریضوں کی جانب سے ہمیں ہسپتالوں کے بارے میں ایسی کوئی بھی شکایت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ حکومتی ہدایات پر ایندھن کی بچت کے لیے موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر حد رفتار میں کمی کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پر کار اور ایل ٹی وی گاڑیوں کی حد رفتار 120 سے کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔ ٹی ایچ وی گاڑیوں کی حد رفتار 110 سے کم کر کے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ ہائی ویز پر ایل ٹی وی وہیکلز کی 80 اور ایچ ٹی وی گاڑیوں کی حد رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے مدثر حسین سے۔ جی مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، فیول کی بچت کے لیے حکومت کی طرف سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر حد رفتار کم کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پر کار اور لائٹ ٹرانسپورٹر وہیکل کی حد رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اب موٹر وے پر مسافر بردار جو گاڑیاں ہیں اور مال بردار گاڑیاں، اس کی جو رفتار ہے وہ بھی کم کر دی گئی ہے۔ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ہائی ویز پر کار اور لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل کی حد رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی ویز پر مسافر بردار گاڑیوں اور مال بردار گاڑیوں کی حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حد رفتار میں یہ تبدیلی وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق توانائی کے مؤثر استعمال اور ایندھن کی بچت کے پیش نظر میں کی گئی ہے۔ نئی حد رفتار سے متعلق نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس نے ملک بھر میں آگاہی مہم بھی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے موٹر وے ترجمان کا کہنا ہے کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا ان ڈرائیورز کے خلاف، ان ٹرانسپورٹر کے خلاف اور جو شہری ہیں جو اس کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا بہت شکریہ۔ پراپرٹی کے خرید و فروخت اور ٹرانسفر کے لیے 50 سال سے جاری این او سی نظام ختم کرنے کی تیاری۔ ایل ڈی اے نیا لائف ٹائم کلیئرنس سرٹیفکیٹ منصوبہ تنقید کی صد میں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے این او سی نظام ہی ختم کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ این او سی فیس ختم ہونے سے ایل ڈی اے کو ریونیو کی مد میں خسارے کا خدشہ۔ مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ پراپرٹی این او سی نظام ختم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور ایل ڈی اے نے نیا لائف ٹائم کلیئرنس سرٹیفکیٹ منصوبہ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ اس وقت پراپرٹی کے سٹیک ہولڈرز کی سخت تنقید کی زد میں ہے۔ دنیا بھر میں پراپرٹی لین دین کے لیے این او سی یا کلیئرنس لازمی سمجھی جاتی ہے، لیکن ایل ڈی اے نے یہ نظام ہی ختم کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ ریکارڈ شفٹنگ کے دعووں کے باوجود ہزاروں متنازع فائلوں کے درمیان لائف ٹائم سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پراپرٹی خرید و فروخت اور ٹرانسفر کے لیے نصف صدی سے نافذ این او سی نظام ایل ڈی اے میں ختم کرنے کی یہ تجویز سامنے آئی ہے، جس کے دستاویزات لاہور نیوز
सामने भी ले आया है। एनओसी खत्म करने की ये तजवीज फ्रॉड के मुमकिन दरवाजे खोलने के मुतरादिफ है, जबकि एनओसी फीस खत्म होने से एलडीए को रेवेन्यू की मद में भी खसारे का खदशा है। जो रिकॉर्ड लाहौर न्यूज को मौसूल हुआ उसके मुताबिक एलडीए के पास 1,60,024 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जिसमें 1,0993 फाइलें शिफ्टिंग के अमल से गुजारने का दावा किया जा रहा है। 59,272 प्रॉपर्टीज को क्लियर करार देकर लाइफ टाइम क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने की तैयारी की जा रही है, जबकि 2,847 फाइलें ताहाल नोट क्लियर की कैटेगरी में मौजूद हैं। 14,647 प्लॉट मुबैना तौर पर एलडीए मलकियत या प्लॉट बैंक में शामिल हैं, जबकि 13,087 केसेस म्यूटेशन और इतराजात का शिकार हैं। इसी तरह 11,140 फाइलें अलॉटमेंट, लिटिगेशन और दीगर तनाजात में उलझी हुई हैं। हजारों मुतनाज़ फाइलों के बावजूद क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम दस्तावेज बनाने की तजवीज दी गई है, जबकि वर्किंग पेपर में बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 18 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एसपी मॉडल टाउन शहर बानो नकवी का तबादला, एसपी ऑपरेशन सेफ सिटी अथॉरिटी तैनात मोहम्मद आसिम को एआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं अहम तबादलों के हवाले से आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 18 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। एसपी मॉडल टाउन शहर बानो नकवी का तबादला कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइएगा। तो पंजाब पुलिस में जो है वो तकर्रुर तबादले किए गए हैं और आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 18 पुलिस अफसरान के जो है तबादले किए हैं। जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें एसपी मॉडल टाउन शहर बानो नकवी को तब्दील किया गया है। शहर बानो नकवी को सेफ सिटी अथॉरिटी ऑपरेशन लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। जानदाद ऑपरेशन लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। इसके अलावा वसीम रियाज जो कि तकर्री के मुंसर थे, उनका भी तबादला किया गया है। वसीम रियाज को एसएसपी टेलीकम्युनिकेशन लाहौर तैनात किया गया है और मोहम्मद आसिम को एआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है वो तैनात किया गया है। एसएसपी ऑपरेशन टेलीकम्युनिकेशन अख्तर फरूक को सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो में क्लोज कर दिया गया है। अख्तर फरूक जो है वो पोस्ट पर चले गए थे, जिसकी वजह से जो है वो सीट खाली हो गई थी और उनको जो है वो आईजी ऑफिस में क्लोज किया गया है। नासिर महमूद बाजवा को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा शाहिद अहमद खान को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद की सीट पर जो है वो तैनात किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सलीम अब्बास कलाची को एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद की सीट पर तैनात किया गया है। मोहम्मद इस्मान को एसपी इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी की सीट पर तैनात किया गया है। मोहम्मद अशरफ को का भी तबादला किया गया है। मोहम्मद अशरफ को एसपी राइट मैनेजमेंट पुलिस गुजरांवाला की सीट पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दीगर अफसरान के भी जो है वो तबादले किए गए हैं और जिसमें 18 जो एसपी हैं, एसएसपी हैं और अब जो है वो मतअद्दद डीएसपी के तबादले किए गए हैं। 25 डीएसपी के तबादले भी किए गए हैं। जराये के मुताबिक सीपीओ मुल्तान को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 3 अफसरान के जो है इंटरव्यू कर लिए हैं। जल्द जो है वो सीपीओ मुल्तान की तब्दीली भी जो है वो मुमकिन है और जो डीपीओ के तबादले हैं वो भी मुमकिन है। वो ईद के बाद जो है वो मतअद्दद जिला के पीपीओ भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। अब आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने भी 30 रोज़े और ईद उल फितर बरोज़ हफ्ते को होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। बारिश का मौजूदा स्पेल आज शाम तक खत्म हो जाएगा, जबकि ईद से कबल इतवार और बुध को बारिश का हल्का सिस्टम आने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से, जिन्होंने डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ से बात की है। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई और जो सहरी के वक्त से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो दिन भर भी उसके किसी न किसी हद तक उसकी झलक नज़र आ रही है। तो इस वक्त आइंदा क्या सूरत हाल है? क्या ये स्पेल शुरू हुआ है, ये आर्जी है या आइंदा चंद दिनों तक चलेगा या आखिरी अशरे में क्या सूरत हाल होगी? इस हवाले से डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ अहमद साहब, उनसे बात करते हैं ज़रा इस हवाले से। जी, अभी जो रेनफॉल हुई है पिछले 24 घंटों में, अभी भी इस टाइम भी कुछ इलाकों में हो रही है, कश्मीर और जीबी के एरियाज़ में, तो ये एक अच्छा स्पेल था। इसने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में रेन दी है, केपीके में तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, जीबी में पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई है और कश्मीर में भी बारिश है। लाहौर में भी 3 से 4 मिलीमीटर बारिश हो गई, मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड हुई है पूरे शहर में।
तो पंजाब के जो बलाई इलाके हैं इनमें रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। तो ये जो स्पेल है ये आज शाम रात तक रहेगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रमज़ान में जो अभी बाकी दो लास्ट वीक जो है अभी रमज़ान का चल रहा है, तो उसमें 2 वेस्टर्ली वेदर सिस्टम एक्सपेक्टेड है, वो भी इसी तरह इसी इंटेंसिटी के है। एक तो इतवार को हो जाएगा, तो उसमें भी लाहौर में रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। इसके बाद एक फिर 28 रोज़े को एक्सपेक्टेड है। ये मौसम तो यानी कदरे बेहतर होता जा रहा है आने वाले दिनों में, तो चांद के हवाले से क्या कह रहे हैं आप? इस मरतबा ईद उल फितर के हवाले से क्या प्रेडिक्शन दे रही है महकमा मौसम? जी, चांद ईद उल फितर का जो चांद है उसका तो जो हतमी फ़ैसला है वो तो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ही करना है 29 रमज़ान की शाम को। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम है। उसकी वजह ये है कि जो चांद की उम्र है अगर 29 रमज़ान की शाम को वो तकरीबन कोई 13 घंटे से भी कम है, लेकिन चांद नज़र आने के लिए इसे कम से कम 16 घंटे इसकी उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल, एक दोनों अच्छी खबरें हैं। एक तो ये कि रमज़ानुल मुबारक के जितने रोज़े बाकी रह गए हैं उनमें 2 दिन मज़ीद ऐसे बताए जा रहे हैं जैसे इसमें बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और दूसरा ये रमज़ानुल मुबारक भी 30 रोज़ों का होने का इस वक्त तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताम हतमी फ़ैसला मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी की जानब के ऐलान जो किया जाएगा उसी के मुताबिक होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का पुराना और सकाफती बाज़ार अनारकली में ईद ख़रीदारी के लिए लोगों का रश बढ़ने लगा है। कोई शर्ट की ख़रीदारी में मसरूफ़ तो कोई पैंट्स, जूते और बेल्ट्स का मुतलाशी निकला है। मारूफ ब्रांड्स में ईद ऑफर्स और सेल्स पर लोगों का रश ज़्यादा है। मज़ीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और शहर लाहौर का तारीखी, सकाफती और मारूफ बाज़ार अनारकली, यहाँ पर ईद की शॉपिंग के लिए या ख़रीदारी के लिए लोगों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। शर्ट्स हों, पैंट्स हों, कपड़े हों, जूते हों या बेल्ट्स हों, लोग जो हैं वो ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसे जैसे जो है वो दिन गुजरते जा रहे हैं, कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है और रश में भी इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या क्या ख़रीदने आए हैं और किसके लिए खरीदने आए हैं, क्या कीमतें देख रहे हैं? गुज़िश्ता साल वही चीज़ें कितने की थी, इस साल कितने की? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये जो बाज़ार है ना मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहतर है और फ़र्क 19-20 का है। यहाँ पे ये है कि मिडिल क्लास आके अपने बच्चों के लिए कपड़े ले सकता है। हम लोग यहाँ आए हैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये है कि अपने बच्चों को बंदा खुश कर सकता है। कहीं अब ब्रांड वाली जगह पे चले जाएँ तो मिडिल क्लास आज के दौर में पूरा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये बाज़ार सही है। हाँ, सेल अच्छी है, अच्छा मतलब रेट भी सही है, लोगों का रवैया भी अच्छा है। यहाँ पे हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बाज़ार बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अनारकली बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी। इनका ही कहना है कि अनारकली बाज़ार जो है यहाँ पे सेल्स लगी हुई है। अगर मारूफ ब्रांड्स पे जाएंगे तो वहाँ पे कीमतें भी ज़्यादा हैं। निस्बतन ये बाज़ार जो है वो बेहतर है, क्योंकि अनारकली में ना सिर्फ जो है वो गिरदो नवाह के लोग बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी जो है वो ख़रीदार आते हैं और जो है वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो है दुकानों पर रेट भाव ताव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही जो है वो दूसरा अशरा शुरू हुआ है, मार्केटों की रौनक जो है वो भी बढ़ चुकी हुई है, लोगों का रश जो है वो भी बढ़ चुका है। और दुकानदारों का भी ये कहना है कि अब दूसरा अशरा शुरू हुआ है। जैसे ही अब दूसरा अशरा शुरू हुआ है, 20वें रोज़े के बाद जो है ख़रीदार भी अब जो है ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। और अनारकली बाज़ार जो है इस हवाले से तो वैसे ही मारूफ है कि ईद की शॉपिंग के लिए जो है लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं बनिस्बतन जो दीगर मार्केट्स और बाज़ार हैं, क्योंकि ये एक पुराना तारीखी और सकाफती बाज़ार है। और यहाँ पर दुकानों पर भी जो है वो ईद के हवाले से स्पेशल ऑफर्स या सेल्स जो है वो भी लगाई जाती है। ठीक है अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद लाहौरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। बागबनपुरा बाजार में खवातीन और बच्चों का रश, कोई ईद के कपड़े खरीदने पहुंच रहा तो कोई चूड़ियां। शहरियों का कहना है कि कोशिश है रश मजीद बढ़ने से पहले ईद की शॉपिंग पूरी कर लें। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद बागबानपुरा बाजार में जहाँ पर रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ईद उल फितर के हवाले से जो है वो शॉपिंग का अमल भी जो है शुरू हो चुका है। बागबानपुरा बाजार में इस वक्त जो है बड़ी तादाद में फैमिलीज जो है वो आ रही हैं जो अपनी ईद उल फितर की शॉपिंग जो है मुकम्मल करने के चक्रों में। जबकि अगर मैं बताते चलूँ तो यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद जो है ख्वातीन और बच्चों की है। वैसे खातून मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मैंने मुझे बताइएगा कि कितनी शॉपिंग कर ली है, क्या पहला चक्कर है और दूसरा मार्केट में रेट्स कैसे लगे? जी बिल्कुल, ईद का मौका है तो बहुत ज़्यादा रश भी है। तो अभी तो खैर दूसरा तीसरा तो चक्कर तो लग ही गया है, क्योंकि कपड़े जो राई जाते हैं, ईद का मौका है
तो रेट्स कह सकते हैं कि थोड़े हाई हैं पिछले साल से, क्योंकि वेरी करता है जो रेट होते हैं। बाकी ईद का मौका आप रश तो देख ही सकते हैं कितना ज्यादा है, और अभी तक शॉपिंग कश्मीरी चूड़ियों का बहुत ज्यादा क्रेज है, हमने वो खरीदी हैं और कपड़े खरीदे हैं। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर आने वाले शहरियों को जो है वो कहना है कि मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर खरीदने पहुँच रहे हैं। और भगवानपुरा बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो ख्वातीन के मलबूसात जो हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं, बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है। कुछ यहाँ पर लोग जो है मेहंदी लेने पहुँच रहे हैं, तो कुछ अभी अपनी शॉपिंग का जो है वो आगाज़ करें। और आने वाले शहरियों का यहाँ पर यह भी कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो यहाँ पर रेट्स हैं वो कुछ ज़्यादा देखने में सामने आ रहे हैं। जी बहुत